اب ایک تم دجال اور تصویر کذاب کے بارے میں لگاؤ کہتے تو ہو کہ ہم رسول ان اللہ کو کا یہ ذل ذل محمد کہا کریں گے یہ اور کہیں ذل گے کہ محمد تم نے نہیں ذل ہے محمد کی او بھائی، تصویر یہ خراب ذل کی ہے، مسلمہ کذاب ہے، یہ یہ ذل تم نے ان کو مسلمہ گالی ذل دی کذاب ہے ہے، محمد کی آج، ان تصویر کو گالی دی ہے، یہ ان کو، مسلمہ یہ ہمارے کذاب، امام، ان کو گالی دی ہے انہوں نے، ان کو گالی دی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ان کو گالی دی ہے عبد عامر احمد نذیر نے بھائی نے۔ ذل محمد کی تصویر خراب کی ہے۔ اب عامر نذیر تو آ کدھر سے آتا ہے؟ اب لگا تصویر، لگا تصویر امام اب جعفر صادق کی کتنی فالوئنگ ہے لانتیو، اب تمہاری ہم کتنی یہ فالوئنگ کہیں ہے؟ گے کہ ذل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تصویر اس نے مسلمہ خراب کا کی ہے۔ ذل ہے، مسلمہ کا بروز ہے، اب مسلمہ لگا کذاب تصویر، کا اب ذل ہم ہے، کہیں گے ذل بروز محمد مسلمہ صلی اللہ کذاب علیہ کا ذل وسلم کی ہے، تصویر، وہ مسلمہ کذاب کا ذل ہے، لگا تصویر اب لگا جس طرح تصویر، جھوٹا اب ہم مدین کہیں گے ذل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں بھائی تصویر بڑی خراب۔ بڑی کرو پکچر میں لگاتا ہوں، اور لانتی جھوٹا مدین نبوت تھا، اب جی ذل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر خراب کی وہ ہے، مرزا قادیانی کذاب تھا، دجال تھا، ان کو باز کروا لو۔ اب ہم نے بھی پھر وہ اپنا جھوٹا مدین نبوت ہے، اب تو باز آئے گا وہ جھوٹا یا پھر مدین میں یہی نبوت کہوں گا ہے، بھائی ذل یہ بروز مسلمہ مانتے ہیں ہم، کذاب کا پیروکار بھائی ہے، ہم تو ذل بروز مسلمہ مانتے ہیں، کا ہے ذل نا، بروز، تو ذل مسلمہ بروز کا ہم مانتے ہیں، محمد صلی اللہ تم علیہ اس کو وسلم جو کی مرضی تصویریں مانو، خراب ہم کر اس رہے کو ہیں یہ، مسلمہ کا، ہم اس کو مسلمہ کا ذل بروز اور مانتے ہیں، تو ہم جو اس کو اس مرضی طرح مانتا لگاتے ہیں، رہے، تو جو ہاں تو مرضی تو بھی مانتا جو رہے، مرضی ہم مانتا تصویر رہے، خراب کر، تو بھی ان جو میں مرضی کمنٹ مانتا سے لکھاں رہے، گا کہ اس ہماری بندے نظر نے میں وہ رسول مسلمہ پاک کے کذاب ذل سے کی بھی برا تصویر ہے، خراب کی، ہماری نظر میں وہ مسلمہ کذاب سے بھی گندا آدمی تھا، تو ان تصویر لا اور میں کمنٹ وہ کروں گا کہ مسلمہ رسول پاک کذاب کے کے، ذل کی توہین کی وہ ہوئی، مسلمہ کذاب کے رسول پیشاب کے پاک کے برابر بھی ذل نہیں کی تھا، توہین کی تو نے، اس تو نے سے یہ مسلمہ تصویر بنائی کذاب رسول پاک کے ہزار ذل درجہ کی، بہتر تھا، لانتیو اور تو نے مرزائیوں، اس سے رسول پاک ہزار کے درجے ذل کو گالی دی۔ مسلمہ کذاب دے دیکھو بہتر جی رسول تھا، پاک کے ذل کو گالی دے رہا ہے یہ بندہ، یہ رسول مسلمہ پاک کے کذاب کا بروز کو ذل گالی ہے، دے رہا یہ ہے، مسلمہ رسول پاک کے کذاب دہشت ثانی کو گالی دے رہا ہے بروز یہ ہے، بندہ، یہ یہ مسلمہ بندہ کذاب رسول کا بروز پاک ہے، کے ذل کو مسلمہ کا گالی بروز دے ہے، رہا ہے۔ پتر ان تینوں تیری زبان وہ ہی یار رسول سمجھاؤں پاک گا، کا ذل کتوں آ گیا، رسول پاک کے وہ ذل کو گالی لانتی، دے رہا ہے، وہ مسلمہ کذاب کا، تم رسول اے لا پاک بھائی کے ذل لو کو جا گالی تینوں دے نہیں رہے رہا ہو، مندہ، تم یہ مسلمہ کا تم نے ذل ہے، رسول پاک کے مسلمہ ذل کی کذاب تصویر کا، خراب کر دی ہے، مسلمہ کذاب کی یہ ذل دوسری محمد کی فوٹو ہے، تصویر فوٹو خراب کی، کاپی، ذل یہ محمد کی ذل تصویر تم نے مسلمہ بگاڑی ہے، کذاب ہے، تم نے یہ ذل مسلمہ محمد کی کذاب کا تصویر بروز خراب کی ہے، ہے، ذل تم نے ذل مسلمہ، محمد ذل کی تصویر خراب مسلمہ، کی، یہ ذل مسلمہ کذاب، علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ آپ اس طرح موعود مسیح موعود لعنتی علیہ جس کو السلام کے کہتے بیہاف ہو، پہ یہ اس طرح کی بات نہ کذاب کریے، ان دجال کی ہے، تعلیمات جھوٹا مدین نبوت ہے، یہ لعنتی جھوٹا مدین نبوت ہے، مسیح موعود اس لعنتی جھوٹے بارڈر صاحب یہ کذاب کو مسیح لے موعود علیہ اسلام نہ السلام کی بولو تعلیمات ہمارے نہیں ہیں، سامنے، پھر نہ کریں۔ اور اس کذاب کو لے اسلام نہ بولو، یہ لعنتی مسلمہ کذاب کا بھائی ہے، ذل مسلمہ ہے، چلو نو سنستان کومپو، یہ مسلمہ کذاب کا ذل ہے، اور یہ حرامی کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا ذل ہے، دسو، اور لعنتیو، اس جیسا گندا آدمی اس کو رسول اللہ کا ذل کہتے ہو، تمہیں شرم، کوئی حیا، کوئی غیرت نہیں، آتی ہے کہ نہیں کوئی آتی نہیں ہے؟ کہتا سر، کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا، الہام میں مسیح موعود علیہ السلام کو صرف نبی اور رسول کہا گیا ہے، کوئی ذلی بروزی نبی نہیں کہا گیا، اللہ نے یہ صرف نبی کہا ہے ان کو، یہ لعنتی جس کو تم مرزا صاحب علیہ کو اللہ السلام نے کہہ صرف رہے ہو نبی نا، کہا ہے۔ یہ لعنتی جھوٹا مدعی نبوت، یہ مسلمہ کذاب کا ذل ہے، بلکہ اس سے بھی گندا ہے۔ مسلمہ کذاب نے جو جھوٹا دعویٰ کیا تھا نا، اس نے سیدھا دعویٰ کیا تھا بھائی میں نبی ہوں، ماننا مانو، نہیں ماننا نہ مانو۔ یہ ایسا گندا کذاب تھا کہ اس کذاب اور دجال نے قرآن کریم کی آیات سے کھلواڑ کیا ہے، قرآن کریم کی آیتیں پیش کر کر کے کہتا ہے میں اس آیت کی روح سے نبی ہوں، اس آیت کی روح سے نبی ہوں۔ یہ مسلمہ کذاب سے زیادہ برا تھا، مسلمہ کذاب اس سے ہزار آج درجے جو بھی بہتر۔ ہو رہا ہے نا، آج جو بھی ہو رہا ہے یہ زردشت کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ میری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، Exactly۔ یہ میں نے کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے، میں تو چاہتا تھا نہیں کہ یہ اس طرح ہو، لیکن اس نے مجھے مجبور کیا ہے، میرے دل سے علامہ صاحب آپ تو بہت سمجھدار ہیں نا، آپ تھوڑا خیال کر لیں یار، جماعت صبر کر، ہاں صبر جماعت کرو۔ والوں کا کیا قصور ہے اس پچھلی کے اندر؟ دفعہ، اچھا پچھلی دفعہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو میری براٹ پر گالی دی، صبر کی میں نے، آپ میرے سامنے جعفر صادق علیہ السلام کو گالی دی، معذرت بھی نہیں کرتا ہے، معذرت بھی نہیں کرتا،
लो भाई, हमारे इमाम को गाली दे, हमारे दिल से खून की नदियां बहते हैं, इनको पता ही नहीं है कि माँ की सालों ये की। आपको ये सबर की तलकीन कर रहा है, आदि कह रहा सबर कर शार्प शूटर है ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸਬਰ ਦੀ ਤਲਕੀਨਾ ਕਰਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਆਪ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ कोई फर्द वाहिद ये काम करता है, कोई फर्द वाहिद ये काम कर रहा है तो पूरी जमात को क्यों रगड़ रहे हैं आप? और ये मिर्जे ने भी यही काम किया है। पूरी देखो सबर, आप चलो आप ऐसा करो, आप भी सबर करो, इसमें कोई बात नहीं, आप भी सबर करो। हाँ जिस तरह हमने सबर किया तुम भी सबर करो अल्लामा साहब मैं तो पीछे एक उतारो, ये सबर कर रहा गालियां हूँ दे और रहा आप है, बिल्कुल सुन रहा हूँ। इसको उतारो समीर, इसको उतारो, गालियां देने लग पड़ा मरजाई का पता खुल गया ये भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को गालियां दे रहा है खबीस। ਚੋਦੋ ਕੁੱਤੀ ਦਿਓ ਪੁੱਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਜਾਫਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂ को ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ गालियां देगा देखा अम्मा को। देखा, एक बंदे ने और गाली दी, देखा। हाँ यही है अल्लामा साहब मैं तो पिछले 1 घंटे से सबर कर रहा हूँ और खामोशी से सुन रहा हूँ आपकी बात। अल्लामा साहब मैं आप 1 घंटे से सबर करो सबर ना, कर सबर करो, रहा हूँ, इसको- तभी मैंने आपको इसको कहा भी अभी गधे थोड़ा पर- सबर रखिए। इसकी टेंड करके इसको गधे पर जब बिठाएंगे तब भी आपने सबर करना है। आप ओ नहीं यार बोलना, इसको बंद सबर करे करो। यार। जिस तरह हमने सबर किया तुम भी सबर करो आमिर इसको भाई खोते पर रहील बिठाएंगे को तुम भी सबर निकाल करना कर आमिर भाई रहील को निकाल कर सारे मिर्ज़ाइयों की माँ को उनके नहीं, मिर्ज़ा नहीं, नहीं, गुलाम उन्होंने गाली ना दो भाई, गाली मिर्जा नहीं, मैं कादियानी की देनी ना तरीफ गाली। गाली नहीं है हाँ आमिर भाई मैं तो रहील ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ हाँ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਟਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੀਪੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹੀਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ सिर दे उत्ते कुत्ते दी साहब का मामला अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लामा साहब मिर्जा साहब हजरत साहब का मामला अल्लाह पे छोड़ दें, इसमें पूरी जमात को ना रगड़ें, फर्द वाहिद के लिए पूरी सारा जमात को ना मामला- रगड़ें। अच्छा, गाल आपने सुनो। पिक्चर लगाई है तो दरदश के लगाएं। आप सुने 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 आप इमाम जाफर सादिक को गाली दें, आप खतून जन्नत को गाली दें, हम मामला अल्लाह पर छोड़ते जाएं, औज़ु बिल्लाह, गालियां औज़ु सुनते जाएं और मामला अल्लाह पर छोड़ते जाएं, ये कह रहे हैं। मैंने कभी सोचा जो वाहिद ऐसा काम करता है आप उसकी पिक्चर लगाएं, उसको लान तान करें, पूरी जमात को ना रगड़ें, मसीह मौद हजरत साहब को ना रगड़ें, ऐसा ना करें। हजरत साहब को अल्लामा साहब रगड़ना ऐसा ना चाहिए, करें। हजरत साहब की टिंड रगड़नी चाहिए क्योंकि हजरत साहब के करतूत ओ हैं, यार ये रही उनकी तुम पाली हुई खुद जमात। ना करें अल्लामा साहब, ऐसा ना करें रही अल्लामा तुम साहब, ना खुद करें सर। कंफ्यूज हो, तुम इस कज़ाब दज्जाल से कंफ्यूज हो और फिर इसके ऊपर दरूद भी पढ़ते हो। ये वो अल्लामा वही साहब मिर्ज़ाई गवाही मैंने नीचे आया है। कभी गुस्ताखी नहीं करी, अल्लामा साहब गवाह इस बात के, मैंने कभी कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किया किसी के लिए भी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये जो मिर्जाई सारे कर रहे हैं इनका जिम्मेदार कौन है? ये किसकी तालीम पर अमल पैरा है? आमिर भाई मिर्जा साहब ने खुद जब कहा है मिर्जा ने कि भाई तमाम अम्बिया की समीर फतक कर इसको सकते इसको हो। मासूम शाह को म्यूट करो, ये हरामी वही है सैफी। समीर ये देखो हरामी नबी पाक को गालियां दे रहा है, हराम ज्यादा। हाँ ये तो ऐसे समीर इसका हाँ, ये क्या लिख रहा है? हरामी है, हरामी। क्या लिख रहा था? नबी पाक का नाम लेकर कह रहा है कि तुम उनको ऐसा वैसा बोल रहे हो और गालियां अपने मुंह से दे रहे हो, लानती। भाई इनकी नजर में इमाम जाफर सादिक क्या हैं? जब ये नबी पाक को गालियां दे सकते हैं हरामजादे, तो इमाम जाफर सादिक इनकी नजर में कुछ भी नहीं है। रहील ये पक्के तो हरामी बताए वो कलमा पढ़ो और इसके ऊपर लानत डालो। इस लोगों ने इसने तुम लोगों की नस्लें तबाह बर्बाद करके दोज़ख जहन्नम में फेंकी हैं। एक जगह कहता है मैं नबी हूँ, दूसरी जगह कहता है नहीं हूँ, एक जगह कहता है मैं मामेद भी हूँ, दूसरी जगह कहता है डाल दिए ना जो मसीह, मैंने तो हर उस शख्स पे लाना डाल दी है जो अहले बैत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है जबरदस्त, या कुछ भी गलत अल्फाज कहता है। लेकिन जबरदस्त। लेकिन अगर आप मिर्जा साहब हजरत साहब की किताब में से कुछ निकाल के दिखाएंगे तो फिर बीच में से एक लाइन निकाल के दिखा देंगे ना, आगे पीछे भी तो पढ़ना चाहिए ना। दार रेल मेरी बात सुनो, देखो अगर मैं आपकी 2 सफ़ों पे तारीफ लिखता हूँ और एक लाइन में मैं आपको गालियाँ देता हूँ, तो क्या आप अपनी वो दो सफ़े की तारीफें देखोगे या गालियाँ जो मैंने तुम्हें दी हैं वो देखोगे?
तारीफ ही देखूंगा भाई, मैं तो अच्छी चीज देखूंगा, और हमेशा गंदी चीज पे मक्खी पे भाई। मतलब कि तुम क्या कहते हो कि जो मिर्जा साहब ने नबी पाक को गालियां दी हुई हैं नाउजुबिल्ला, यानी कि वो ठीक है? अहमद जट की कॉल लेना समीर साहब, अहमद जट की कॉल लेना, ये मेरा दोस्त है। पिक्चर नहीं, बंद मिर्जा कर देते साहब हैं अहमद कैसे जट। गालियां दे सकते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यार? बहुत उनके ओ, चुप करो यार, चुप करो, बात कहते करने हैं दो अपने अहमद आप को, जट वो साहब। कैसे गालियां दे सकते हैं? ये अहमदी है, ये भी अहमदी है। हाँ हाँ हाँ, ओ पता नहीं चला मुझे। ठीक है। बोले जट साहब, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ते रिक्वेस्ट करन आया कि समीर साहब अगर ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ, और दूसरा ਤੁਹਾਡੇ के ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ उर्दू request- बोले, उर्दू 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 बात उर्दू में बात कर, समीर को समझ नहीं आती। अच्छा, मैं समीर भाई ये कह रहा हूँ कि आपका किसी वजह से दिल दुखा है तो उस चीज की मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। नहीं, आप क्यों माजरत कर रहे हो? उसको खुद को माजरत करना मेरी भाई चाहिए। बात पूरी होने दें, फिर बेशक आप कर लें, सुन लें। और दूसरा आपसे ये नीचे आप- हरामी मरजाई है, मिर्जा कजाब। नीचे म्यूट करो यार, मुझे किसी मौलवी म्यूट वाली लगा दो। आईडी। नीचे ठीक। वो गालियां लिख रहा है, उसको म्यूट करो। चल, मुझे ठीक है, म्यूट ठीक। कर रहे हो तुम। तो ठीक है, चुप करिए, ना लड़ो आपस में। ठीक है। अच्छा समीर भाई, आपसे और जो भी इधर तस्वीरें लगा रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये काम ना करें। बस इतनी सी बात है अभी भाई। बात अभी क्या जो बंदा आया है था, समीर भाई देखो, बात देखो, सुनो। जी, जी। अभी जो बंदा एक आया था उसकी मैंने सुनी है, उसने गाली दी है। उसके पहले जफ्तर साहब ने क्या बात की है मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर उन्होंने भी कोई ऐसा काम किया है तो वो गलत है। तो जो आप काम उसने कर रहे किया है हैं, भाई, मैं कोई पागल इंसान नहीं हूँ जो ठीक लोगों है की भाई, मैं नहीं कह रहा कि उसने नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा कि उसने नहीं किया, मैं ये नहीं कह तो रहा। बस मैं कह उसको रहा हूँ माजरत करना चाहिए। अहले बैत की गुस्ताखी की है, ठीक है, माजरत करना चाहिए उसको। आपकी बात बात बड़ी के मैं अच्छी आपको है, समझाता हूँ। देखो, इसी बात तरह के चलाएं नबूवत, और- देखो बात के नबूवत जारी है नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुका है, जिंदा है, उसको अहले बैत की तौहीन से क्या लेना देना? नबूवत जारी है तो अहले बैत को आप गाली दोगे? आप इमाम जाफर सादिक को गाली दोगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को गाली दोगे कि नबूवत जारी है? ये कौन सी तरीका है भाई? मीर भाई देखें, वो जमात अहमदिया के भी अकाबिर हैं, जमात अहमदिया भी उनसे बाज रवायत लेते हैं जमात वाले, जमात भी उनको मानती है, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी ने वो काम किया है तो वो गलत किया है, तो आप गलत क्या है, ठीक है, गलत क्या है, उसको माफी मांगना चाहिए, बात खत्म कर देना चाहिए। अगर हम वो भी माफी किसी नहीं अकाबिरीन मानता तो की आप तस्वीरों को नहीं लगाता हूँ मैं, हरगिज खुश नहीं हूँ मैं इससे। मैं अपना पुल लगा के गाना चलाऊंगा, जिंदगी खत्म होगी, ठीक है। लेकिन उसने शुरू उसने की, उसको कहो गुरूर मत करो, अपने जात पर गुरूर मत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को तुमने गाली दी, आओ माजरत करो, बात खत्म। इतनी सी बात करनी है कि मेरी मुंह से ये गुस्ताखाना अल्फाज अनजाने में निकली है, उससे मैं माजरत करता हूँ, बात खत्म। मैं भी अपनी ब्रॉड को, अपने नाम को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब अहले बैत की पर बात आती है तो मेरी जान भी उस बदनाम तो आपकी कुर्बान है उनसे। आपकी ब्रॉड बदनाम तो हो गई है। नहीं, ब्रॉड की बात नहीं है, बाखुदा जान पर आ जाए। मैं आपने अभी एक बात की है कि आपकी ब्राड के ऊपर आपने पता नहीं हजरत फातिमा तो ज़हरा की बात की थी कि किसी ने को गाली दी तो आपने वो बर्दाश्त कर ली ना। तो मेरा ख्याल है ये कि राशिद साहब कह रहे हैं कि आप कौन सी माफी आप लगा कर ले। कल देखो, फिर कल देखो, अगर रो नहीं पड़े आप फिर देखना। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आओ माजरत करो, कोई बात नहीं खत्म करो। है। अगर कल आप लोग भाई, खुशी नहीं की ऐसा तो है, मेरा नाम भी- आप शायद नए आए हैं, बात सुन लें, रोता कोई भी नहीं है, ठीक है। आप बेशक ठीक है। 10 दिन सुन लें प्यारे भाई, आप बेशक 10 दिन ये तस्वीरें लगा के किसी से कोई ये असर तस्वीरें पड़ेगा। नहीं, फिर वो अलग सा होगा, फिर वो अच्छा नहीं आप होगा। जो भी स्मीरपाई कर लेंगे इसमें कोई फर्क नहीं किसी को पड़ेगा। हाँ, तकलीफ जरूर होगी, इससे ये
आपको कोई हटा नहीं सकता। आमन नजीर भाई साहब को कोई हटा नहीं मैं सकता। आप और लोगों जितना भी को लोग मैं आप लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहता, ठीक है? आप लोग हो इंसान, मैं भी हो एक इंसान। जिस तरह मेरी दिल को तकलीफ होता है, उस तरह आप लोगों की दिल की भी हमारे तकलीफ दोस्त जो होता है, भी आके इधर को गाली ठीक है? दे रहा है, देखें मैं खुद भी कभी किसी दौर में इसी तरह जज्बाती होकर गालियां देता था ये चीजें देख के, हाँ, तो उसका फायदा कोई नहीं होता। हम मुकाबला नहीं आपकी कर मिर्जा सकते साहब भाई। की अगर तौहीन हो जाए तो आप लोग शिकायत करोगे। अगर आप हमारी यार मेरे मैं इमाम की शिकायत कोई तौहीन नहीं करोगे लेके आया समीर भाई, उसका मैं क्या? शिकायत कोई नहीं लेके आया, शिकायत कोई नहीं लेके आया। देखें आपने जितना कर लिया है मेरा ख्याल काफी है, जितना उसने किया है आपने भी कर लिया है। तो ये चीज अब मेरा ख्याल है कि आपसे रिक्वेस्ट है, आमन नजीर साहब से भी, और जो नहीं, उसको वो माजरत क्यों नहीं करता भाई? यार अगर वो माजरत नहीं क्यों नहीं आता, करता? एक चीज है सुन नहीं, ले समीर भाई, साहब आपने आले भी भाई बहुत के कर सामने लिया, गुरूर बहुत दिखाता कुछ कर है, लिया आले आपने। भाई के सुन सामने ले, गुरूर अगर दिखाता वो है बंदा आप लोग। नहीं आता समीर भाई, अगर वो बंदा नहीं आता, ठीक है, तो आप 10 दिन ये काम कर लें, चलो इससे भी ज्यादा कर लें आप, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं करूंगा, करना तो नहीं उससे क्या चाहता, होगा? लेकिन अगर मजबूर करोगे उससे तो क्या इससे होगा? भी बदतर हालात होगी नहीं फिर भाई। प्यारे भाई, उससे क्या होगा बताएं? कुछ होगा तो तो आपका फायदा होगा। देख लेंगे, फिर देख लेंगे प्रोग्राम, नहीं, फिर आप बनाएंगे आप हम। कह रहे हैं कि अहले बैत का आप बार बार पिक्चर लगाने से होगा क्या? अगर तो आपने उनकी तालीम लेनी है तो फिर प्यारे भाई, अगर जितना आपको किसी ने दर्द दिया है उतना आपने दे के, तो मेरा ख्याल है अब मैं सारों से जो ये काम कर रहा है, रिक्वेस्ट है आपसे, आगे आपने नहीं मानी है आपकी मर्जी है, आपकी ब्रॉड है, आप इससे भी ज्यादा तौहीन में इस तस्वीर लगाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, आप 15 दिन लगा के देख लें, कुछ नहीं कर अगर सकते। उसने माफी की, अगर मैंने मिर्जा साहब की आगे तस्वीर इधर कोई लगाई बदमाशी तो पे कह रहा है कि मैं ये कर देगा, गुनहगार। आपकी भी कोई तस्वीर लगाएगा, लेकिन- गलत करेगा, उससे ना उसको कोई फायदा होगा ना आपको कोई होगा। इल्मी जिस तरह अपराध आपकी होती है उसके ऊपर आप बातचीत लोगों को करवाते हैं ना, अच्छा, आप लोग वो खुद को करवाएं। मुसलमान कहते हो और अहले बैत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरेआम गाली देते हो। यार एक बंदा दे ना, 2 दे, एक 10 दे, दो इसका तीन मतलब ये नहीं है एक कि हफ्ते सारे में ही 5 देंगे लोग यार। दिया है, एक हफ्ते में 5 लोग दिया है भाई। जमाते भाई जिसने अहमदिया से वो किया लोगों है एक वो हफ्ते में गलत किया है 5 ना, मैं तो कह रहा हूँ ना कि वो गलत किया है, देते रहेंगे, गलत देते किया है अगर हुआ है। ऐसा नहीं होता भाई, एक्शन तो लेना पड़ता है। अच्छा इससे आपको फायदा को हो जाएगा बता दें। फायदा तो ये नहीं होगा, लेकिन हमारे हाँ दिल तो को फिर फायदा सुकून नहीं मिलेगा होगा कि तो कुछ अगर ना एक कुछ आप किया हमने कुछ ना कुछ तो अगर किया, आप एक ठीक है। इल्मी ब्राड लगा रहे हैं, इल्मी ब्राड आपकी सुनता रहता हूँ मैं अक्सर, देखिए इसके ऊपर बिठा के जो इल्मी गुफ्तगू है वो ही करवाएं, इस चीज से कोई फायदा नहीं है। आप एक दिन और तस्वीर लगाएंगे उसके बाद फिर वही बातचीत दोबारा शुरू हो जाएगी। जट साहब ये आप नेकी का काम खुद क्यों नहीं करते? आप अपनी ब्रॉड लगा के इल्मी गुफ्तगू क्यों नहीं करवाते? मतलब जिस तरह तलत मलिक साहब कुछ, मेरे को टाइम नहीं है फिलहाल ना, यकीन करो कि मैं बहुत ज्यादा बिजी है आजकल, ठीक है, ते इस वास्ते बिल्कुल कसम वाली गल है कि टाइम कोई नहीं है। थोड़ा बहुत किधर थोड़ा टाइम निकल रहा है, मैं ड्राइव करने तो थोड़ा बहुत टाइम निकलिया तो मैं देखिਆ सामने ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसे मौके ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ऐसे मौके ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। नहीं वल्ला नहीं देता बस, अगर तुम मैं यकीन करो तो ठीक है। चलो, मैं मैं हूं किਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ हॉलैंड ਕਰ एंटर होया वा, ठीक ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ। ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ, ਵੱਲਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਸ ਸਵਾਲ। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना, अपने कम से कम अपनी ज़मीर को तो तसल्ली दिला सकते कि हमने कुछ किया, कुछ ना कुछ किया, अहले बैत की शान के लिए कुछ ना कुछ किया, ठीक है। तो क्योंकि एक दिन हम मरने वाले हैं, उस दुनिया में अगर तो अहले बैत की रूह यही दिखाना है। तालीम है, अगर तो अहले बैत की यही तालीम है तो बेशक आप करते रहे। अगर आपको लगता है कि अहले बैत ने आपको यही तालीम दी है तो बेशक हाँ, आप करें। देखो फिर हम आप अहले बैत ने हमें ये तालीम दिया है कि माफ करो, एक बार माफ की, 2 बार माफ की, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब कि करते जा रहे हो माफी हम इधर बेटे के माफ करते जाए, ऐसा थोड़ी होता है।
यार ये समीर भाई एक देखिए, बार, मैं नहीं दो कह रहा कि बार, आप माफ तीन करें, बार, आपके चार पास बार, rights पांच हैं। बार। देखें आपके पास राइट्स हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप जितना उसने किया आपने भी कर दिया, तो मेरा ख्याल है कि इसको यहाँ पे स्टॉप करके तो आगे चलें, ठीक है। जैसे ओ आप भाई पहले उसको क्या गुरूर है कि क्या उस पे यार मैं नहीं सात कहता पर यार नाज उसको है, गरूर उसका है या गुरूर जो है। भी है उसको छोड़ें। क्या क्या बात समझता क्या वो उसको क्या अपने आप ये इस तरह करके क्या चाहते हैं कि कोई भी अहमदी जो है वो इधर आके आपकी ब्राड के ऊपर बात ना करे? जो बंदे इल्मी तरीके से आपसे बात करना चाहते हैं या आपकी ब्राड पे बैठे किसी दूसरे शख्स के साथ बात करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप इस तरह करें ताकि कोई भी ना आए आपके पास। क्यों? कि आपको पता है कि हमें जो है मिर्जा साहब हमारे नजदीक क्या है, तो ये तरीका ठीक नहीं है कि अगर मैं गलती करूं और पूरी जमात को तकलीफ दी जाए। हम उसको समझा सकते हैं अगर कोई करता है, तो उसके बाद अगर नहीं समझता तो उसमें ये नहीं हो सकता कि आप सारों को रगड़ा लगाई जाओ। तो आपसे माफी मांग रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं, आपका दिल दुखा है तो छोड़ें इस बात को, जितना आपने करना था वो कर लिया है। जट साहब एक सवाल है आपसे, जी ये जो कुछ किया गया, ये जो कुछ हुआ है यहाँ पर, ये रिएक्शन में हुआ है ना, ज़रतश्त की वजह से हुआ है ना? मैंने जरतश की बात नहीं सुनी, आपको पता है ना, इधर चलाई गई है। अगर वो चलाएं तो फिर उसके बाद हो सकता है क्या बात हुई क्या नहीं। नहीं आपने ये सुना है कि आपके सामने टी अहमद और वो सारे कहकर गए हैं आपके 5 बंदे को उसको माफी अल्लाह मांगनी की चाहिए। कसम उठा के कहता हूँ मैंने नहीं सुना। अच्छा नहीं, लेकिन चले टी अहमद यहाँ पर अभी मेरे अभी सामने ये जो भी मोहन टी लाल अहमद कहकर मरजाई गया है। गाली निकाल दे, एक मिनट अमर भाई, अभी जो मोहन लाल वो सुन मरजाई गाली लीजिए निकाल साहब, दे डॉक्टर साहब मैं सुन लीजिए, मैं क्या उन्होंने गलत किया, मैं वो मैंने नहीं पता वो अहमदी है कि नहीं है। अहमदी है भाई। ये लोग क्या करते हैं कि पहले ये लोग गाली देते हैं, फिर कहते हैं वो अहमदी जरतश नहीं है। अहमदी है, समीर भाई सुन ले, जरतश अहमदी है, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। बाकी अच्छा जो दूसरा बंदा आया था उसको वल्लाह खुदा की कसम मैं नहीं जानता वो ओ अहमदी है भाई या नहीं। खुदा ए ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम की, जो अगला बंदा भी गाली दी जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अभी 2 मिनट पहले, उसने दी है भाई, देखें अहमदी मुझे है नहीं भाई, पता। अहमदी है, अगर अहमदी है। अगर अहमदी है भाई, देखें बात सुने, अगर वो आप शोर हैं, आपने कलमा पढ़ के कह दिया है, तो ये बंदा वो खुद कहेगा कि मैं अहमदी हूँ कि नहीं हूँ ना। यार अहमदी है भाई, बात क्या, मैं उसको 2 हफ्तों से चलो 2 हम महीने उस से बहस में जानता क्यों हूँ। जा रहे हैं कि मैं एक चीज मैंने खुद अपने कानों से सुन ली है और मैं कह रहा हूँ कि उसने गलत किया है, उसको ये नहीं पता। जमात अहमदिया की कई रवायत जो है, ये सिलसिला तो बंद होगी। देखो, बात ऐसा नहीं होगा ना, जब तक आप लोग बंद नहीं करोगे हम बंद नहीं करते, हम भी आप बंद नहीं अगर आप करते। हमारे भाई, इमामों को गाली दोगे हम भी आपकी इमामों की तौहीन बिल्कुल करेंगे। आपके पास राइट्स है। देखिए मैं आपको कोई मना नहीं कर सकता, मैंने पहले कहा है आपको आगे ही कि आपको मना नहीं मैं कर सकता, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आपने जितना कर लिया काफी है। तो आप मैं कह रहा सी कि बस तुसी ये दस दियो कि भाई असी जो कुछ भी कीता है ये रिएक्शन च कीता है, और रिएक्शन उस बंदे दे फेल दी वजह दा है, जिन्हों ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ टाइम दे के बुलाते रहे ने, ਤੁਹਾਡੇ अपने बंदे भी ਇੱਥੇ आके कहते रहे ने कि हाँ उन्होंने आके माफी मंगनी चाहिए, लेकिन वो बंदा नहीं आया। ਤੇ इन द एंड समीर ने मजबूर होके ਇਹ तस्वीर लाई है। ਇੰਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਦੇ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਔਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਸਮੀਰ ਨੇ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? क्या बोल रहे हैं आप? ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਉਹ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੀ ਤੋਂ ਕਿਦੋਂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਬਥੇਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਬਸ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ये आपका इल्जाम है। अब मेरे ਅੱਛਾ ਕਰੋ। अब मेरा जवाब भी मुझे देने दो। मेरा जवाब ये है कि अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है कि अगर यहाँ पर ये मसला नहीं होता, ये जट साहब का ये क्या नाम है समीर भाई का ये दिल इस तरह से दुखा हुआ नहीं होता, तो मैंने तो कभी भी मिर्जा साहब की तस्वीर इस तरह की नहीं लगवाई ना लगाई, ना मैं इसको जायज समझता हूँ, ना मैं इसको अच्छा समझता हूँ। मैं शिया थोड़ी हमारा अपनी भाई ब्रॉड पर है, मेरी लगाने सुन ले की बात। देता, मैं अपनी ब्रॉड पर शिया लगाने मेरा नहीं भाई है, भले वो शिया इसना अशरी है, भले वो शिया वो इस्माइली है, ये सब हमारे भाई हैं। इनमें से कोई बंदा आके मुझे कहता है कि मेरे इमाम को वहाँ गाली दी गई है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, ये मेरा उसके साथ इस्लामी रिश्ता है, मैंने उसके लिए उसका साथ दिया है, ना कि अपना बोगस और खुन्नस निकालने के लिए। अगर मैंने अपना निकालना हो भाई, मैं अपनी बरात पे रोज़ निकाल सकता हूँ, मुझे कोई रोक सकता है सवाए अल्लाह के? मैं कर सकता हूँ और करता भी हूँ अपनी बरात पे। जो मुझे बुरा लगता है मैं उसको बुरे को बुरा कहता हूँ। आज जो इस बरात पर जो कुछ हुआ है ये सारा ज़रतश्त का किया दर है भाईजान। जट साहब इसको पॉजिटिव लिया करें कि भाई हमने कोई इसलिए नहीं किया कि आज जो हुआ है बहुत गलत हुआ है अलामा साहब। हमने इसलिए नहीं किया कि भाई हमें अपना गुस्सा निकालना। आपकी बात के अंदर ही जवाब है ना जो मैंने बात की है। आप खुद ही ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरे भाई का दिल दुखा है, हालांकि इमाम जाफर अलैहिस्सलाम जो हैं वो तो सबके काफिर हैं, वो सिर्फ शियों तो के वो तो सब नहीं के हैं। हम के हाँ, हैं, तो वो मैंने पहले कहा। आपका अंदर ही उसके अंदर जवाब है कि जारी बात है कि आपने एक चीज देखी है तो उसके अंदर आपको फिर मौका मिल गया है। आप ये बात भी कर सकते थे भाई मेरा दिल दुखा है, आप कह रहे नहीं मेरा दिल, हाँ मैं बताता हूँ, मेरा दिल ज्यादा दुखता जट साहब। क्योंकि मेरा दिल नहीं दुखा है। जट साहब अगर मेरे सामने सुन लें, मेरे सामने कोई गाली देगा मेरा ज्यादा दिल दुखेगा ना। मैंने तो सुना है ये इससे समीर से, मैं मौके का गवाह नहीं हूँ। जब मेरे सामने कोई गाली देता है मेरा दिल दुखता है सबसे ज्यादा। असमीर के सामने गाली दी कि वरना वो इमाम जाफर सादिक को मेरे सामने भी गाली देता तो मैं ये कहता कि मेरा दिल दुखा है, जब क्योंकि मेरे सामने गाली नहीं दी गई। जो जरदारी साहब ने गाली दी है समीर साहब के नजदीक, जो वो कह रहे हैं कि गाली दी है, वो आपने बात नहीं सुनी ना अभी तक, तो सुन ली है। ओ भाई मैं कोई पागल बेवकूफ तो नहीं हूँ, और उसने खुद नहीं कहा आपको मेरे सामने। समीर भाई नहीं कह रहा, वो प्यारे भाई सुन लें, आपको मैं नहीं कह रहा, आप ठीक कर रहे हैं बात, आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं आपको नहीं कह रहा, मैं सिर्फ अमन नजीर साहब से पूछ रहा हूँ कि आपने बात सुनी थी। वो बात अभी सीसीडी आके कह रहे हैं कि यार सीसीडी इसको को ऑन छोड़े नहीं ना कर- अमन नजीर साहब, यही फिर मसला है ना कि आपने बात भी नहीं सुनी और आप जज्बाती हो गए हैं। मैंने उसको कहा है चलाओ यहाँ, सीसीडी को आपके सामने कहा चलाओ यहाँ, जो जवाब वो इतना कहता है मैं कुछ अपनी आपने बरात पे किया जाऊँ। है अमन नजीर साहब, मैं समीर साहब ने जो किया वो उन्होंने अपनी जगह ठीक किया है, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं है एक बात का, तो आपने वो काम कर दिया है। भाई मैं तो उसके साथ हूँ जब ना, कोई समीर खबर के लेके साथ हूँ, आए, मुझे समीर खबर पर- कोई लेके आए तो आपने को तस्दीक भी करनी है कि नहीं करनी। वो फासिक हो ना, के फासिक सामने हो तो हुआ है ना। उसकी खबर की तस्दीक कर। यार, ये अब मेरा फासिक मुसलमान तो भाई है। है, अल्लाह मुझे यकीन है कि समीर झूठ नहीं बोल रहा भाई, मुझे उस पर इतबार है। समीर उसके सामने वो टी अहमद आया था ना, अमन नजीर साहब बेशक जो भी है, देखें कोई भी हदीस पेश करती जाए तो यार अली अहमद भाई बैठ जाओ, अली अहमद भाई बैठ जाओ यार ठीक है, और सारी गल ठीक है। बब्बर शेर साहब तुम ठहरो जरा, ठहरो। अमन नजीर साहब गल हो रही है, प्लीज रिक्वेस्ट है। सारे चुप देखो करो, अमन सारे नजीर चुप साहब करो ਤੁਸੀਂ मुझे। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਠੀਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਕਰੋ। मैंने अल्फाज ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ पूछे, ਹੋਈ। ओ भाई तस्दीक हुआ मैंने इनके आते ही- सामने टी अहमद साहब आए। मेरी बात भाई सुनो, आप समीर भाई आप ठीक हैं, समीर भाई आपको मैं गलत नहीं कह रहा, मैं बता ओ भाई जट आपकी साहब जमात इस बरात से पर जी आमिर भाई, समीर भाई, आमिर इस भाई बरात ये पर नीचे जैसे ये ही नीचे मैं एंटर सैफी, हुआ हूं ना, आमिर भाई ये नीचे सैफी दोबारा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को नीचे गालियां लिख रहा है। कौन है वो? यार ये आईडी बताए ना, म्यूट करें उसको यार, जो मलांग- भी है ये मलांग गाली ID। मलांग नाम की आईडी म्यूट कर। ये सैफी है, ये सैफी है। जट साहब जब मलांग। मैं इस बरात में एंटर हुआ हूँ मुझे याद नहीं है, 1.5 घंटा पहले जिया भाई यहाँ बैठे थे, मैंने आते ही सबसे पहले बात पूछी है समीर क्या वाकया हुआ है। समीर ने मुझे बात सुनाई है, मैंने सिर्फ उसको लफ्ज उसने नहीं दोहराए, उसने कहा ये लफ्ज मैंने बोले, उसने यही लफ्ज
जाफर सादिक, तो बात तो उसने सारी बयान कर दी ना। अब वो बात मुझे इस पर एतमाद है कि ये झूठ नहीं बोल रहा, इसने सच बोला है कि ज़रतश्त ने यही अल्फाज, हरामजादे वाले अल्फाज और गश्ती का बच्चा, जो 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 कुछ इसने बोला था, उसने वो ये सारे अल्फाज इमाम जाफर सादिक का नाम लेकर बोले हैं। अगर नहीं बोले वो रिकॉर्डिंग ला दें, वो रिकॉर्डिंग ला दें कि वही उसने तो ये लफ्ज नहीं बोले, समीर झूठ बोल रहा है। मुझे तो इतबार है, मैं कहता हूँ समीर ने सही बोला है, उसने जरूर ये लफ्ज बोले। झूठ नहीं बोल रहा मैं, झूठ बिल्कुल नहीं। मोहम्मद नजीर साहब, यही एक इल्मी ख़यानत होती है। वही बात है कि बात चीज़ें जो हैं लोग आपसे बड़ा सीखते हैं कि पहले आप जो है वारद पेश करते हैं, बताते नहीं हैं कि किसकी है, ठीक है, तो लानत वानत आप डलवा लेते हैं, ठीक है। तो यही काम अगर किसी दूसरे ने किया है, ठीक है, असल में गलत किया है उसने। पहले पूरी इबारत और जो भी उसका मुसन्नफ है, जो भी है उसका पहले पूरा उसको देना चाहिए था। उसके बाद समीर साहब से बात करनी चाहिए थी कि ये इमाम जाफर की रवायत है, ठीक है। ये नहीं है कि पहले बातें सुना तो उसको क्या कि अगर ये कहे, आप भी तो यही काम करते हैं ना, तो दोनों गलत हो गए ना। ये मैंने हाँ, नहीं, तो आप ऐसा अभी कह रहे बिल्कुल नहीं अच्छा, है। पहले तस्दीक कर लिया करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने मेरे से सवाल की कि अगर कोई अहले बैत की गुस्ताखी करे, गाली गलौज दे अहले बैत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को, तो आप उसको क्या मानते हो? मैंने कहा वो हरामजादा है। तो जरदश ने आगे से कहा कि फिर इमाम जाफर सादिक भी तो वैसा ही है, नाउजुबिल्लाह। अब ये देखो, ऐसा ही कहा मैंने। ये अल्फाज इसने जब मुझे तो बताए फिर हैं, मैंने कहा इस बात से मुझे भी आग लगी है। और फिर मैंने उसको समीर कहा भाई, यही तो बात ये मैं कर रहा हूँ खानदान ना। है। समीर भाई देखें, अहमद नजीर साहब फिर आपको मुझे आगे नीचे समझा रहे उतारा थे। इन्होंने। नहीं समीर भाई सुने, आपको अहमद नजीर साहब थोड़ी देर पहले समझा रहे थे कि पहले बाज़ रवायात जो हैं वो अहले तशय्युअ में या जो दूसरे फिका हैं उनके अहले अंदर सुन्नत में भी, गलत अहले है। तशय्युअ में भी झूठे ख्वाब। गलत है ना। तो बाज दफा लोग पेश करने के बाद वो काम करते हैं, ठीक है। यही जो है काम अहमद नजीर साहब भी करते हैं। बड़ी दफा देखा है, पहले कहेंगे हाँ भी लानत पा है, गल है, गलत है, तो लानत पा, ठीक है। उसके नहीं, वो बाद मैंने पेश की बता जाती दिया। है कि वो बना है। तो आपने ये अगर सुन लिया है इल्मी बदयानती मैंने- होती है कि बात बताना ना कि किसकी है और कौन लेकिन सा। जज जाओ साहब- उनको कहो कि आओ माजरत करे, बात खत्म करे, ठीक है। ज्यादा लंबा जज साहब इसने तो कॉल भी झूठा पेश किया ना। इमाम जाफर सादिक का ये कॉल भी नहीं है, ये झूठा कॉल उसने पेश किया और फिर गाली अपने मुंह से दी है। ज्यादती ये है, अगर वो हम किसी का कॉल पेश करते हैं और वो कॉल भी झूठा हो, जिस तरह वो आप कहते हैं कि ये वो बात झूठी है, काजी अल्लाह यार वगैरह की जो भी है उसकी लिखी हुई, तो आप कह सकते हैं कि वो झूठा कॉल। ऐसे ही हमारे नज़दीक ये अकवाल झूठे हैं, ये इमाम जाफर सादिक का कॉल नहीं है। ऐसा कॉल पेश करके इमाम जाफर सादिक को गाली दी, तो मैं ये कह रहा हूँ जज साहब कि उसने ये हरकत क्यों की है कि उसने अपने मुंह से गाली, हाँ वो ये कहता कि देखो भाई समीर, ये कॉल है लिखा हुआ इमाम जाफर सादिक का, मुझे मिला है, तो तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। मैंने उसको बता दिया समीर भाई को कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई कॉल पेश करे, आप उसको कहो कि मुझे कॉल दे दो, मैं जाके इस पे रिसर्च करके चेक करके आगे जवाब दूंगा। ऐसे नहीं, मैं कोई सारी किताबों का हाफिज कोई भी नहीं है यहाँ पर बैठा हुआ, तो देखेंगे, हो सकता है झूठा हो सकता है सच्चा हो। सच्चा होगा तो मैं राय दे दूंगा, झूठा होगा आप भी अमल करेंगे ना जो आप बात कह रहे हैं कि कोई भी अहमदी जिसका रूहानी खजान का मुतालिया नहीं है या दूसरी कुतब का नहीं मुतालिया, तो उसको बताएंगे पहले कि ये बशीर अहमद साहब की है या दूसरे किसी भी बंदे की है किताब, और सारा उसका नाम बता के और सारा पहले वो बात उनको बता के तो उसके बाद करेंगे ना। आप पहले आप जो काम करते हैं कि हवाला दे देते हैं और लानत वानत को आके तो बाद पता लगता है वो गल ते मिर्जा साहब दी थी। मैं कसम खा के कहता हूं कि कई लोगों को, आपके कई लोगों को मैंने इस शर्त पर छोड़ दिया, जब उन्होंने कहा कि ये हम देखेंगे तो मैं खुश हुआ कि ठीक है कि बंदा देखेगा, तो मैंने कहा ठीक है आप इसको देख ले, कल आ जाए, कोई मसला नहीं है। मैंने आज तक किसी को मजबूर नहीं किया कि नहीं तुम अभी यहाँ लानत डालो, गाली दो वगैरह वगैरह। ठीक है कि बंदे का नहीं मुतालिया तो वो कह सकता है कि भाई मैं इसको देख कर बता दूंगा, ये जायज बात है। ठीक है भाई, उनको कहो कि भाई बंद करे, ये आओ इधर। जज साहब आज के लिए जज साहब आज के लिए आपके कहने पर नहीं भाई बंद करें, तस्वीर बंद कर दे, बंद कर दीजिए।
लगा के रखें आज समीर के भाई, लिए कोई मसला नहीं है नहीं इसमें। नहीं नहीं जट साहब के कहने पर आज के लिए हमने ये तस्वीर हटा दी, बंद कर दी। अब आप बताएं कि कल के लिए हमारे बारे में आपका क्या हुक्म है? अगर आप ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਹਾ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जी समीर भाई उर्दू में बात करता हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर समीर भाई ये काम करके आप ये चाह रहे हैं कि आपकी ब्राड पे कोई अहमदी आके बात ना करे, तो फिर ठीक है, आप ये काम करते रहें। कोई बात नहीं, कोई बात एक मैं जाता ही नहीं हूँ कि अहमदी से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं इन लोगों से, ठीक है। आके माजरत करे बस। मैं यहाँ पर अपनी ये वो क्या कहते किसी कटरीना कैफ की तस्वीर लगा के हिंदी गाना लगा के अपना जिंदगी जीऊंगा भाई। मेरे को आप लोगों से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, आना है मत आना है मत आओ। मैं कोई आप लोगों का तो मोहताज नहीं हूँ कि आप नहीं आओगे तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो माजरत करे, बात मैंने खत्म आपको ये नहीं कहा कि आप किसी के मोहताज हैं, और ना कोई अहमदी किसी का मोहताज है, ठीक है। सारे लोग ऐसे नहीं होते कि बंदा कहे मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, सारे अपने घर में बैठे रहो। तो जो मेरे जैसे बंदे जो इल्म वाले नहीं है, उन्होंने कैसे सीखना है? अहमदी भी किसी का कोई मोहताज नहीं है। जो अहमदी मेरे जैसा ला इल्म बंदा है, उसने ऐसे ही सीखना है। किसी के पास इतना फारिग टाइम नहीं है कि जाके किताबें खोले और पढ़े और सारा कुछ करे। इस टिकटॉक पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, तो मोहताज कोई किसी का नहीं होता। कोई अहमदी भी इतना नहीं थोड़ा पड़ा कि वो कहेगा समीर की ब्राड पे जाके हमने बात करनी है। तो ये आप जरा सोचें, आगे आपकी मर्जी है, मैंने रिक्वेस्ट कर दी है, आगे आपने लगा के रखनी है तो बेशक लगा के रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत भाई मैं शुक्रिया आपका लगाना टाइम नहीं देने का। चाहता, मैं लगाना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों ने मुझे मजबूर की, ठीक है। सारे लोगों लोग ने नहीं भाई, एक बंदे ने किया है, लोगों का बात ना करें, और दूसरा बंदे का मुझे नहीं पता। एक बंदा जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी भी मुझे पूरी सब बात का लोगों ने नहीं उसकी पता। सपोर्ट की, अगर उसको आपके सपोर्ट ऊपर ही की मैं है। बिलीव करके बात कर लेता हूँ कि देखें, अगर तो आके उसकी कोई हमायत करता ना, आपके बकौल ही जो है वो 3-4 बंदे आए और उन्होंने कहा कि ये बात गलत है, ठीक है। टी अहमद साहब या और कोई दोस्त अहमदी ऊपर आए और उन्होंने कहा यार ये जफर साहब ने गलत बात की है, आप बता रहे हैं ना, मैंने तो हाँ। वो बात भी नहीं सुनी, ठीक है। उन्होंने तो सुनी यार है, ये काफी है उन्होंने कि सुनी एक कम्युनिटी की तरफ से लोग आके कहते हैं कि यार ये बंदे ने गलत बात की है, तो ये मेरे ख्याल काफी होता है समीर भाई। ऐसा नहीं होता कि जो बंदा 5 बंदे आपको कह रहे हैं भाई आके ये जरदाश्त साहब भाई इस बंदे किस ने चीज गलत का किया है, गुरूर है? मेरा ख्याल ये गुरूर क्या, किस चीज का गुरूर है इसका? इसको क्या गुरूर है जो अहले बैत के सामने इन्हें माजरत नहीं और यार करता? गरूर ये क्या किसी को गुरूर नहीं है होता, आप गरूर लोगों नहीं में? होता। आपकी बातों से साबित हो रहा है। देखें, ये मुखालफिन की आपस में चालें होती हैं समीर भाई। आपको थोड़ा लैंग्वेज कोई का चाल भी नहीं। हमारा डिफरेंस है, वो आपको शायद मेरी पूरी बात भी समझ नहीं आ रही, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि आपकी पश्तो है लैंग्वेज, और नहीं शायद मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आपको समझ आ रही है आपकी तमाम बातें, ठीक है। आ रही है ना। फिर उर्दू में इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि देखें, ये चालें होती हैं मुखालफिन के साथ बात करने की, ठीक है। ये मैंने बहुत देखा है इस टिकटॉक के ऊपर कि लोग जो हैं कोई भी इबारत पेश करते हैं और बताते नहीं है कि इसका मुसन्निफ कौन है। तो यही मसला अगर उस बंदे ने किया है और उसने आपको कोई एक इबारत या जो भी कौल उनका है इमाम जाफर अलैहिस्सलाम का, वो आपके सामने पेश कर दिया, ठीक है, और बताया नहीं कि ये इमाम जाफर का है, बेशक वो झूठी रवायत है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि लानत डालो या ऐसा करो या वैसा करो, ठीक है। तो बाद में जब इंसान ये काम कर लेता है और इंसान को बाद में पता चलता है कि यार ये तो मेरे सबसे बड़े अकाबिर थे रसूलुल्लाह के बाद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये होती है। आप अभी नए हैं, आप टिकटॉक के ऊपर हमें 4-5 साल हो गए हैं जब से टिकटॉक है, तो मैंने ये देखा है दोनों साइड पे ऐसा होता है कि लोग पहले इबारत पेश करते हैं, अपना काम रिकॉर्डिंग करवाई, ठीक है, उसके बाद बताते हैं लो जी आप फलाने दी अहमदियों के साथ भी होता है ऐसे, ठीक है। हालांकि उन्होंने नहीं बात पढ़ा क्या कि हम ये इन चीजों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है।
کوئی اقبال لاہوری کو گالی آپ نے کر دے، لیا ہے، میرا خیال آپ قائد اعظم یا پرویز مشرف کو گالی دے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، گھنٹے کی نوک پہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو انسان کا ہمارا تو خون کو لگتا ہے. یار کیا بات کر رہے ہو آپ؟ بھائی گالی تو کسی کو بھی دیکھیں، گالی نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہو کہ آؤ یہاں پر معافی مانگ لے، بات ختم کرتے اس پر، ٹھیک ہے. اس کو بھی ثواب ہوگا، وہ بھی ثواب میں شامل ہوں گے، ہم بھی ثواب میں شامل ہوں گے. لڑائی جھگڑا اختلافات کو ختم کرتے، آپ اپنے راستے پر جاؤ، ہم اپنے راستے پر جاتے ہیں. اگر نہیں کرو گے تو پھر کل سب کو دعوت دیا ادھر میرے براڈ پہ، ٹھیک ہے. کل آپ لوگ پھر سے آ جائے گا. ٹھیک ہے سمیر بھائی، پھر بہت شکریہ آپ کا. آپ سے ریکویسٹ ہے، ان کو باقی آپ سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ، ٹھیک ہے. میں یار کل کسی تک کو ہم نہیں انتظار سمجھا کریں. سکتا، دیکھیں سمجھا نہیں سکتا، ریکویسٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. ہاں ریکویسٹ تو کرو، باقی ریکویسٹ جو کرو، آپ نے بس کرنا بات ہے ختم. وہ آپ کے پاس رائٹس ہے، یہ جو ہے ٹک ٹاک ہے اسی لیے، تو اس کے اندر بندہ آزاد ہوتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. کوئی دھمکی نہیں آپ کے ساتھ، کوئی کچھ نہیں، پیار محبت سے ریکویسٹ ہے بس. بہت شکریہ آپ کا. اچھا، آپ یعنی مطلب آپ دھمکی بھی دو گے مجھے؟ دھمکی بھی دے سکتے ہو آپ؟ وہی مسئلہ ہے نا کہ آپ لینگویج نہیں سمجھتے نا. ابھی آپ نے کہا کہ کوئی دھمکی کی بات نہیں، ہم پیار سے آپ کو سمجھا رہے. ہاں تو میں وہی بات کر رہا ہوں نا، جیسے کوئی اوپر آ کے غصے میں کوئی گالیاں دے یا دھمکی دے، وہ چیز میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں کوئی دھمکی نہیں، کسی قسم کی ریکویسٹ ہے بس. باقی آپ کی مرضی ہے، آپ آزاد ہیں. آپ نے کل لگانی ہے، آج ابھی لگائیں، پورا اگلا ہفتہ اور لگائیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، میں یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو سمجھا کے ادھر بھیج دیجئے گا، بات ختم کرتے ہیں. بھائی میں آپ کو پھر بار بار وہ آپ سمجھتے نہیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں میں کسی کو نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے. کوشش کریں، کوشش چلیں کریں، ٹھیک ہے، بڑا لگتا. کوشش کریں. اوکے کل سر. تک اگر نہیں مانے گا تو پھر ہم بھی کچھ نہ کرنا ہوگا. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اہل بیت کی یہی تعلیم ہے تو پھر بے شک آپ کرتے رہیں، ٹھیک ہے. نہیں، ہم تو اہل بیت کی شان کی دفاع میں ادھر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہمارا وظیفہ ہے، وہ آخر دم تک کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے بھائی. تو چلو بھائیو، اب اس براڈ کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کل ملتے ہیں. کل آپ سب کو دعوت اس براڈ پر آئیے گا اسی ٹائم پہ، پھر بات کرتے اس موضوع کے اوپر. فی الحال اللہ حافظ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا، آپ لوگوں کا.
समीर कहाँ हो? जी समीर क्या हाल है? ठीक हो भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। समीर देखो, मुझे नहीं पता क्या होगा या क्या नहीं, तो बात ये है, देखो जो भी अहले बैत के बारे में कुछ करता है ना, वो गलत बात है, ठीक है। तो अगर आपको किसी की वजह से अच्छा नहीं लगा तो सबसे पहले मैं उसकी माजरत करता हूँ। तो माफ़ी मांगने से ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, ठीक है। तो दूसरी, ये जो आप कर रहे हो ना, तो अभी ठीक है, तो आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अहले बैत की भी इज्जत जो है तो हम पे वाजिब है, ठीक है, करनी चाहिए, हक बनता है, आम इंसान की भी करनी चाहिए। मगर आप ये जो तस्वीरें अभी तो इस दुनिया में लगा रहे हो, मगर ये भी आपको एक दिन, हर एक इंसान को, ये नहीं आपको, मुझे भी, अगर मैं भी कुछ गलत करूंगा तो मेरे प्यारे भाई आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। आप अहले बैत से मोहब्बत करते हो, मैं भी करता हूँ, ठीक है, हर इंसान करता है, जो भी मुसलमान है, हक बनता है। मगर आप अहले बैत से जो है ना, अफजल जो है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं दूसरे अहले बैत की, जो उनका खानदान है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो मिर्जा हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मिर्जा साहब अल्लाह के नबी हैं इस उम्मत में, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, आप आज तो कुछ ये जो कर रहे हो ना, एक दिन आपको भी इसका हिसाब देना पड़ेगा, अच्छा, ठीक है। जो मैंने जो किया है वो दूसरा क्या करेगा गलत उसको भी देना पड़ेगा, मगर आपको उससे ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक नबी की इस तरह जो है तो कर रहे हो। अच्छा, आप उनको नबी मानते हो, ठीक है, लेकिन अहले बैत को आप अहले बैत की गुस्ताखी करना, ये आपको ठीक लगता है? यार मैंने सबसे पहले यही बोला है, आप सोए थे, मैं कह रहा हूँ गलत बात है, गलत बात है। मुझे नहीं पता क्या हुआ है या क्या नहीं, मैंने फिर भी एक इंसानियत के नाते बोला ठीक है, आप अहले तशय्युह हो, अगर आपको बुरा लगा है, किसी की बात बुरी लगी है, मैंने उसकी माजरत की है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप में अभी भी कोई इंसानियत होगी ना, तो मैं, अगर आप बोलते हो ना फलां आदमी ने किया, फलां आदमी ने, समझो वो मैं ही हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है। नहीं, उसको कहो इधर आके माफी करे, बस बात खत्म, इतनी सी बात है। इसमें लड़ाई झगड़े की क्या जरूरत है भाई? क्योंकि अगर आप ये तो आप बुरा लगता है ना, उसी तरह हमारे दिल को भी बुरा लगता है जब कोई हमारे इमाम या बुजुर्ग को तौहीन और गुस्ताखी करे, ठीक है। देखो मैं ये बात कर रहा हूँ, तो हर मुसलमान जो है ना अहले बैत से मोहब्बत करता है, सही है। तो आपकी क्या उससे बात हुई है, उसने क्या की है, वो मुझे नहीं पता, मगर फिर भी मैंने एक इंसानियत के नाते कहा है, अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो मैं उसकी माफी चाहता हूँ, सही है। और आप नहीं, जो कर रहे हो ना, आप ऐसी बात नहीं है आप कि अगर मुझे अगर लगी किसी है, ने नहीं गलत लगी, बात उसने की है ना, की है, आप उसने उससे की है, बढ़कर कर रहे हो, उसने की है, आप उसने अल्लाह ऐसा के एक किया। नबी पे कर रहे हो, सही है। वो भी आले बैत को गाली दी मेरे सामने, ठीक है। वो आप जिसको नबी मानते हो, हम तो नहीं मानते ना। आप आपके लिए नबी होंगे, हम तो नबी नहीं मानते उनको। अच्छा, जब अल्लाह किसी को नबी बना के भेजता है तो अगर कोई मान लेता है तो ठीक है, अगर कोई नहीं मानता तो क्या वो उसका जवाब नहीं देगा? तो आप यही बोलोगे तो मैं नहीं, जब आप मर जाओगे अल्लाह के पास जाओगे, हैं, इधर तो हकीकत नहीं खुलेगी आपके सामने। जब मर जाओगे अल्लाह के सामने जाओगे, अगर एक ये सोचो ना, हम तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मिर्जा साहब को अल्लाह का सच्चा नबी मानते हैं, आप नहीं मानते, एक मिसाल है। अब अगर आप मर जाते हो, चले जाते हो, आपको पता चल जाता है तो मिर्जा साहब अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो फिर आप पे क्या गुजरेगी, ये भी सोचो ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। हम तो आले बैत होगा, की क्यों नहीं होगा? जो एक नबी का इनकार करता है ना, आप अहले बैत से मोहब्बत कर रहे हो ना, ये जो आप मोहब्बत कर रहे हो, ये सबसे पहले आप अल्लाह का इनकार कर रहे हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे हो, तमाम अंबिया का इनकार कर रहे हो। जिसने एक नबी का इनकार किया उसने तमाम अंबिया का इनकार किया, सही है, अगर आपको इस्लाम का पता है, सही है। जिसने एक नबी का इनकार किया उसने तमाम अंबिया का इनकार किया, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुल नबीयीन है, सब अंबिया से अफजल हैं, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी, सही है। तो आप
جو محبت کر رہے ہو نا وہ محبت نہیں ہے, وہ محبت میں آپ کچھ اور کر رہے ہو, آپ کو سمجھ نہیں ابھی آ رہی. تو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں دیکھو ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, کوئی بھی مسلمان ہے کرتا ہے, صحیح ہے, مجھے نہیں پتا اس نے حوالہ پڑھا ہے یا جو بھی آپ دونوں کے درمیان ہوا ہے, میں پھر بھی کہہ رہا ہوں میرے پیارے حوالہ بھائی یہ نہیں پڑھ رہا ہے, سمجھو. انہوں نے سیدھی سیدھی الفاظ میں گالی دی ہے. حوالہ چلو پھر نہیں میں پڑھا. یہ بات تو سنو, میں پھر بھی ایک انسان ہونے کے ناطے یہی کہتا ہوں جس نے بھی جو کی ہے صحیح ہے وہ سمجھو میں ہوں, کیا سمجھو میں ہوں, وہ شاہ رخ ہے جس نے آپ کے سامنے کیا, صحیح ہے, میں پھر بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں, صحیح ہے, یہ سمجھو میں تھا. نہیں آپ نے نہیں کیا, آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ کیوں معافی مانگتے ہو؟ اس جس نے کیا بات تو وہ سن لو, معافی مانگ لے. بات تو سمیر بات سن لو پہلے میری. یہ سمجھو جس نے بھی کیا غلط ہوا صحیح ہوا جو بھی ہوا, یہ سمجھو میری اور آپ کی بات ہوئی, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. نہیں میں کیوں سمجھوں آپ بھائی, نے یہ ابھی تو- بھی یہ کوئی تو- میری بات تو سن لو, یہ تو بات غلط پوری بات کرنے ہے دو نا, پھر آپ کر لو. گناہ کوئی بات اور تو کرے سنو. معافی کوئی اور مانگے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. آپ ایسا کر سکتے ہو کہ آپ کے بھائی کسی کا قتل کرے اور پولیس کو آپ کو کہ چلو اس کو چھوڑ دو مجھے پکڑو, ایسا ہوتا ہے؟ بات سنو, جو قتل ہے نا وہ ایک علیحدہ چیز ہے, ٹھیک ہے, اگر دیکھو گناہ سب ایک چیز ایک ہی ہے. اگر آپ کے بھائی کسی کو گالی دے تو آپ کہو کہ اس کو چھوڑ دو میرے کو پکڑو, ایسا تھوڑی ایک ہوتا ہے. انسان بات سمیر بات سنو, آپ کو سمجھ نہیں آتی, صحیح ہے, بات یہ ہے ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا صاحب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, کسی نے کوئی جو بھی کیا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں تو ایک انسان کی وجہ سے جو ہے تو سارے انسانوں کے ساتھ جو ہے نا ان کے دل کے ساتھ آپ کھیلو, صحیح ہے, یہ بھی تو بات ہے نا. اگر کرتا ایک ہے, مثال کے طور پر اگر اس نے کسی نے کچھ کیا بھی ہے, کرے کوئی ایک تو برے سب, یہ کون سی عدالت ہے یا کون سی مثال کے طور پر مسلمان ہے؟ کرے ایک, ہاں یہ آپ نے صحیح کہا, اس نے کیا, میں نے اس سے کہا اور جماعت احمدیہ سے تقاضا کی کہ وہ آئے معافی مانگ لے, بات ختم, اتنی سی بات ہے, ٹھیک ہے. اور اہل بیت کے سامنے تو ہر مسلمان کا سر جھکتا ہے, تو دیکھو لیکن میں اس نے پھر ایسا بھی نہیں کیا, اس نے ایسا نہیں میں کی, پھر بھی انہوں نے میں نہیں کی, پھر بھی آپ دوبارہ لوگوں کہہ نے رہا ہوں, کو نہیں منانے کی کوشش نہیں کی, تو اس کا انجام یہ ہوا, ٹھیک ہے. اب اگر وہ اس طرح میں سے پھر ہی بھی اپنے غرور پر ٹکا رہے گا تو پھر وہ اس کا انجام بہت برا ہوگا, میں بتا رہا ہوں. یار کوئی انجام برا نہیں ہوگا, صحیح ہے سمیر, میرے اندر ایک انسانیت تھی, میں نے آپ کو اپنا جو ہے نا بتایا, تو اگر آپ کو برا لگا نا میرے پیارے بھائی تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, صحیح ہے. تو اگر پھر بھی آپ میں انسانیت ہوگی تو ختم کر دو گی اس بحث کو, اگر نہ ہوگی تو اس طرح کرنے سے یہی ہے نا 2-4 منٹ 10 منٹ کو اس بروڈ پہ آئے گا تو اس کو اچھا نہیں لگے گا, وہ چلا جائے گا. تو صحیح ہے, اللہ نے جب بھی کوئی نبی بھیجا ہے نا تو اسی طرح اسی قوم نے لوگوں نے کیا ہے, صحیح ہے. تو اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, صحیح ہے. اللہ جس کو عزت دیتا ہے نا, اللہ جس کو عزت دیتا ہے, صحیح ہے, اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, صحیح ہے. یہ بروڈوں پہ بیٹھ کے دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا صاحب ایک گاؤں سے, ایک قادیان, ایک قصبہ سے ان کا پیغام سٹارٹ ہوا. آج دنیا کا کوئی بھی کونا نہیں جہاں ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک جو ہے نا پرچم لہرایا نہیں, ان کی فتح ان کو نصیب نہیں ہوئی. اللہ نے ان کو ہر جگہ عزت دی ہے, صحیح ہے. کون سا دنیا کا ملک ہے ایک عام انسان, تو عام انسان کون سی دنیا کی پارلیمنٹ ہے یہ مجھے بتا دو, دنیا کا کون سا ملک ہے؟ امریکہ کی پارلیمنٹ لگا لو, جرمن کی پارلیمنٹ لگا لو, کون سا ملک ہے کس پارلیمنٹ کے اندر جو ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا مرزا صاحب کا ذکر نہیں ہوتا؟ مجھے ایک بھی دکھا دو, یوٹیوب بھرا پڑا, میں آپ کو ابھی لگا کے دکھاتا ہوں, صحیح ہے. تو اس طرح کرنے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی, مگر یہ ہوتا ہے تو انسان اپنا کردار کسی کے سامنے پیش کرتا ہے, صحیح ہے. میں یہ نہیں کہتا میں کوئی اچھا انسان ہوں, صحیح ہے, مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو ٹھیک ہے. تو کسی کو گالی دینا, بدتمیزی کرنا یہ نہیں ہے, کبھی کبھی مجھ سے بھی ہو جاتا ہے, میں مان لیتا ہوں, انسان وہ ہوتا ہے جو غلطی کر کے مان جائے. تو کبھی کبھی میں بھی بروڈوں پہ بیٹھا ہوتا ہوں, ہم بھی ینگ ہیں, تو کوئی بدتمیزی کرتا ہے, میری زبان سے بھی ایسے لفظ نکل جاتے ہیں. ٹو دا پوائنٹ میں یہ بات کر رہا ہوں میرے پیارے بھائی, اگر آپ کو کسی کی بات بری لگی ہے, آپ کا دل دکھ ہے, تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. اگر آپ میں ابھی بھی کوئی انسانیت ہوگی
آپ اس کو ختم کر دو گے. نیکسٹ ٹائم جو ہے نا آپ کی بروڈ پہ خواہ کوئی احمدی ہو کوئی بھی ہو, اگر دیکھو انصاف کا تقاضا برابر ہونا چاہیے. کوئی یہ بھی دیکھو آپ ابھی کی یہ بروڈ گالی پہ دے آ گا, کے, یہ دیکھو یہ اس نے گالی بھی دیا ہے, اس نے بھی گالی دی, یہ دیکھا. میری بات سن لو پھر اس کے ساتھ بات کر لو. میری بات سنو, نیکسٹ ٹائم آپ کی بروڈ پہ کوئی احمدی ہو غیر احمدی ہو, خواہ میں بھی ہوں, جو بھی آپ کو جو ٹھیک ہے ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, پھر بھی آپ کو نہیں نہ لگتا تو اچھا تو اس یہ غلط آدمی ہے تو اس کو بلوک کر دو میرے پیارے بھائی. ٹو دا یہ پوائنٹ, اس کو دیکھو اس نے بلوک کر دو, گالی دی کام اس کو. ختم. اچھا اس نے گالی دی, 2 منٹ پہلے اس کو معذرت کریں. میں نے نہیں گالی دی بھائی, میری ایک فیک آئی ڈی سے کوئی آیا ہوا ہے, میری آواز سنا دو تم. میں نے کبھی آپ کو یہ گالی دیکھو نا, دی ہے؟ وہ جو آدمی آیا تھا وہ آدمی اور اس آدمی میں آواز میں فرق بھی ہے نا, یہ دیکھ لو. چلو اس میں نے پر بولا امیر بھائی آپ پہلے تھوڑا سا غور کر لیا کرو, میرے نام کی ایک فیک آئی ڈی ادھر پھیر رہی ہے. وہ میں نے اس چیک کو کرتا بہت ہوں, منع وہ کیا میں کہ چیک نہ کرتا کرو تم. آپ چیک کرو, آواز کو چیک کرو نا آپ. میرے ہفتہ ہو گیا میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں نے آپ کو کبھی برا بھلا بولا؟ یار میں بھی آپ لوگوں کو برا بلا نہیں کہتا, لیکن آج اس نے جو کیے نا آپ نے بہت بڑی اس زیادتی سے کی میں ہے. اتنا رویا کہ آپ سمجھ. یار سمیر, میر میں نے صاحب آپ نے سمیر آج بات بہت سنو, بڑی زیادتی کی ہے. ایک منٹ موہن بھائی, ایک منٹ دیکھو, میں نے پھر بھی آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں میرے پیارے بھائی, ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یہ سمجھو وہ جو بھی ہوا نا, سمجھو سارا کچھ میں نے کیا, یہ سمجھ لو ایک مثال کے طور پر. آپ کا دل کو اچھا نہیں نہ لگا, سمجھو میں نے کیا, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. نہیں اس اگر طرح ابھی تو بھی آپ میں انسانیت ہوگی تو آپ معاف کر کے یہ دوبارہ جو ہے نا, تو اس طرح کی یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پکچر اس طرح نہ لگاؤ. کوئی بھی آدمی ہے, خواہ کوئی احمدی بھی ہو, نہیں میں بھی ہوں, لگاتا میں. اگر میں آپ کی چلو روڈ ٹھیک پہ ہے, آ کے نہیں لگاتا, آپ کی ذات ہرگز پہ, نہیں بات تو لگاتا. سنو, ٹھیک ہے, اگر میں آپ کی آج سے سمیر پہلے بات لگایا سنو, تھا, میں آج سے پہلے لگایا تھا, آگے بھی نہیں سمیر بات لگاؤں سنو, گا. لیکن خدا را اس کو کہو آ کے اپنی گناہ کی معافی کر لے, میرے دل کو سکون حاصل ہوگا, بس بات ختم. ٹھیک ہے, اگر یار ایسے دیکھو اپنے سمیر غرور بات پر سنو, ٹکے رہے گا وہ, تو کیا کر سکتا ہے انسان. دیکھو ہم تو عاجز لوگ ہیں. ٹھیک ہے, سمیر بات تو سنو, میں یہ بات کر رہا ہوں, ایک آدمی کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو ہے نا, تو جو اللہ جن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اپنے والدین سے یا مثال ہے تو ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, ایک انسان کی وجہ سے اگر اس نے کی یا نہیں کی میں نے نہیں سنی, اگر جو بھی آپ کے دل کے ساتھ ہوا ہے تو کیے اس سب نے کے تو ساتھ کیے, ایسا اس نے کرنا تو اچھی کیے. چیز نہیں ہے. تو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں بھائی, میں معافی چاہتا ہوں, اگر آپ کے دل کو اچھا نہیں لگا مجھے معاف کر دو, میں معافی مانگ رہا ہوں. اگر پھر بھی نہ باز آؤ تو پھر کر لو, کیا کر سکتے ہو. اس طرح کسی کی عزت کوئی کم نہیں ہو سکتی. جی, او بھائی اگر آپ کی آپ کیوں معافی مانگ رہے ہو, آپ کیوں معافی مانگ رہے ہو. تو خطا میں تو اس کی یہی ہوئی. کر سکتا ہوں نا میرے پیارے بھائی. دیکھو ہاں ہمارا حق ہے نا, ہم تو ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, ان کو اللہ کا نبی اور نیک بزرگ مانتے ہیں, صحیح ہے. ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے نا, اس وجہ سے معافی مانگ رہا ہوں. اگر آپ میں ابھی بھی انسانیت ہوگی تو نہیں کرو گے, نیکسٹ ٹائم جو بھی کرے اس کو بلاک کر دو. سمیر بھائی یہ جو آپ 4 سرکاری بٹھا کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہو نا, تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. نہیں وہ خود آتے ہیں بھائی, خود آتے ہیں. نہیں بے شک خود آتے ہیں, لیکن وہ آپ کو کہتے ہیں اس کی فوٹو لگاؤ, اس کو ایسے کرو, آپ ویسے ہی کرتے ہو. نہیں دیکھو بھائی, آپ جو آپ کو وہ کہتے ہیں وہ آپ کا Can I see? تو پھر سمجھنا یہ جماعت فیک تھی, یہ
یہ جماعت جھوٹی تھی. اگر اللہ نے اسی طرح دنیا میں زندگی آپ کی زندگی میں اس جماعت کو جو ہے نا ترقی سے نوازا نا تو پھر سمجھ لینا تو آپ کو قیامت کے روز اس کا جواب دینا پڑے گا. اور دوسرا بھی اگر میں بھی کروں گا مجھے بھی دینا پڑے گا. یہ نہیں آپ کو ہی, اگر میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے دل کو ٹھوکر دوں گا, آپ کے